This week on Journey in the Life of an Indian, we travel to Bihar's hinterland to explore the journey of two individuals who are an inspiration to many. Life was never a roller coaster ride for the self-made mathematician Anand Kumar. But today his initiative Super 30 provides a better future to many underprivileged students by shaping them for one of India's most prestigious institutes, the Indian Institute of Technology. Jaya Devi overcame many difficulties in her life to become a messiah in the lives of her fellow villagers in the Naxal-prone district of Munger in Bihar. In the quiet outskirts of Patna, a 10-year-old boy spent all his time solving mathematical queries. His father supplied him with biographies of mathematicians and scientists, and reading their stories inspired this curious child to create and innovate. That was Anand Kumar 30 years ago. Today, at 41, he has grown up to run the most ambitious coaching center in the country, Super 30. विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर यह लगता है कि पिछले साल के तुलना में उसके कंपैरिजन में हमें सफिशिएंट नॉलेज है ताकि मैं आईआईटी को आसानी से क्वालिफाई कर सकूं। स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे तो टीचर्स तारीफ करते हैं तो खुशी तो होता ही है, अच्छा लगता है। वो भी बोलते हैं कि मेरी बेटी सुपर 30 में पढ़ रही है, इस साल उसका आईआईटी में होगा। यहाँ पढ़े हैं, यहीं से हमको कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि हम इस साल आईआईटी क्रैक कर जाएंगे, वो भी अच्छे रैंक के साथ। किसी भी नंबर के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Each year, 30 bright students from economically backward sections of the society are selected and trained for free for the joint entrance examination of the prestigious Indian Institute of Technology. जब मैं पैसे के अभाव में बाहर पढ़ने नहीं जा सका था कैम्ब्रिज, तो ये दर्द मुझे हमेशा सताता था। बहुत सारे मैं अपने आसपास में बच्चों में देखता था कि उनमें प्रतिभा है, करने का कुछ जुनून है, लालसा है, ललक है, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है। तब हमने इसी उद्देश्य को लेते हुए कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सका, लेकिन हमारी नई पीढ़ी है जो आगे बढ़ सके, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं सुपर 30 की शुरुआत सन 2002 में की थी और आज 12वां साल चल रहा है और अब तक 330 बच्चों को हमने ट्रेन किया और इन 330 बच्चों में 281 बच्चे आईआईटी गए और बाकी बच्चे भी डिफरेंट कॉलेज। After studying maths honors from Patna University, Anand wanted to pursue higher studies in mathematics from the University of Cambridge. But due to extreme financial constraints, he could not fulfill his dream. 1 अक्टूबर 1994 को हमें कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था। हम लोग इसी मकान में बात कर रहे थे, पिताजी के साथ खाना खा रहे थे। जब खाना जैसे ही ख़त्म हुआ, थोड़ी देर में पिताजी का सांस फंसने लगा और 23 अगस्त 1994 को गुजर गए। 1 अक्टूबर को ज्वाइन करना था, 1994 को गुजर गए, तो घर की सारी जवाबदेही और जिम्मेवारियां हमारे कंधे पर आ गई। फिर कैम्ब्रिज जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अब उस समय हमारे पास 2 रास्ते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद पिताजी के जगह पर जो गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था उसको करने का एक था कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, नहीं तो दाल रोटी चलेगी कहाँ से। और दूसरा एक था कि अगर आप नहीं जाते हैं वहाँ तो कोई बात नहीं, आप संघर्ष करें। तो हमने सोचा ठीक है, मैं संघर्ष करूँगा। And the result of his hard work is Super 30. Besides preparing these students for almost 1 full year to crack the IIT entrance, the institute also provides free accommodation and food. IIT graduate Deepak Kumar is Anand's former student. He considers Super 30 to be his alma mater, which he visits frequently. Feels very good
to work in an American company because of Anand sir. After IIT, I joined Mahindra, and then I moved to an American company, General Mills, working as a technical consultant. I belong to a very rural place called Bad. Right from there to Anand sir, it was a very difficult situation for me to get a good life or get a good education. So when I came to Anand sir, he taught me a entirely different system, the way he thinks, the way he solves the problems. And then I went to IIT, I applied his thinking. Another one of his other students, Amit Kumar, is confident of cracking this year's IIT entrance exam. ये मेरा सैटेलाइट एक जीएस टेस्ट नहीं सैटेलाइट आर डिस्टेंस मेरा सरफेस पे रखा गया तो आपको उसी के हिसाब से बन जाएगा. An ambition that holds a lot of significance for not just him but his entire family. मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको मैं अच्छा से वो उनका पढ़ाई लिखाई हो और अच्छे जगह पढ़ें ये कोशिश करूँगा, ताकि जिस हम सब का जो कंडीशन है, हम जिस कठिनाई को मैंने देखते हुए आए हैं वो उनको झेलना नहीं पड़े. घर का जो कंडीशन है उसमें भी सुधार हो ऐसा कोशिश करूँगा. और जो पापा कष्ट झेल रहे हैं वो पहले से जो झेलते आ रहे हैं वो आगे नहीं हो ऐसा कोशिश करूँगा. Back home in Dakshini Chak village, 60 kilometers away from Patna, Amit's father works as a marginal farmer. To fund Amit's education after 10th grade, his father had to sell a part of his farmland. तकलीफ तो यही खाने पीने रहने में घर का भी अभाव है, वस्त्र का भी अभाव है, सब कुछ सहकर दुख सहकर अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं. हमारी आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र अगर जो उनसे मदद मिल जाता है तो जरा छोटा साधारण उपलब्धि नहीं तो बहुत बड़ा उपलब्धि है. अगर जो नहीं मदद करते तब तो हमको संभव नहीं था वहाँ तक जाने के लिए. From taking screen tests and interviews to managing the day-to-day concerns, Anand's brother Pranab Kumar plays a vital role at Super 30. आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों में ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है? A trained violin player, Pranab has left his job to join his brother to help build this social venture. इसका अफसोस ये नहीं कि हम म्यूजिक छोड़ दिए, अच्छा लगा कि उस तरफ न ऊर्जा लगा कि इधर ऊर्जा लगाए, इसका परिणाम आया और अच्छा आ रहा है. बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई किए, IIT जाते हैं, फिर अच्छी नौकरियां करते हैं, अच्छी गाड़ियां खरीद रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है. After the demise of his father, it was their mother Jayanti Devi who took to selling papad to support the family. Anand would ride his cycle around the city selling papad to households and kirana stores. Today, their mother is happy to cook for all the 30 students studying at their center. But there is one regret that she will never be able to get over. हम लोग माँ बेटा सोचे कि बेटा बोला जब माँ हम नहीं कर पाए गरीबी की वजह से तो और बच्चे लोग गरीब हैं, उनको कुछ करना चाहिए. हम बोले ठीक है आप हेल्प करिए, ठीक है करेंगे. यही में खाना बनाना शुरू किए, पढ़ाना शुरू किया, हम खाना बनाना शुरू किए. हमको जब आनंद अच्छा काम करता है तब हमको अफसोस बहुत लगता है. पापा का याद बहुत आता है आनंद के. आज वो रहते तो कितना खुश होते, हमसे ज़्यादा खुश होते. Over the past 12 years, the results have been very encouraging with a 90% success rate. But Anand's journey has been fraught with many challenges. जब से मैंने कार्यक्रम को शुरू किया तो ये एक चैलेंज के तौर पर हमारे लिए था कि 30 बच्चों को रखना, घर में खिलाना पिलाना इस महंगाई के ज़माने में. बहुत लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, बड़े बड़े लोगों ने कॉरपोरेट जगत से भी और साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से
कि आप मुझसे सपोर्ट लीजिए, लेकिन आज तक हमने किसी से 1 रुपया भी डोनेशन चंदा नहीं लिया। हमारी एक टीम है जिसमें कुछ हम लोग टीचर हैं, वो मिलकर शाम को जो बच्चे पे कर सकते हैं उनको ट्यूशन देते हैं। उस ट्यूशन से जो हम लोगों की आमदनी होती है उसी से हमारे परिवार का और 300 बच्चों का खाने पीने का खर्चा चलता है। हम लोग चूँकि फ्री में पढ़ाते हैं तो उनको जेलसी है कि भाई ये बिना पैसा लिए हुए इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है और इतने अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, जबकि हम लाखों रुपए लेते हैं, हमारे पास कुछ परिणाम नहीं आ पाता है। तो ये मुहिम को बंद करने के लिए वो लोग बड़े बड़े जेल में बंद माफियाओं से मुझे धमकी दिलवाया, वो माफिया लोगों ने मुझ पर हमला किया। इससे बचने के लिए फिर गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सहायता किया और 2 बॉडीगार्ड बिहार गवर्नमेंट से उन्होंने मुझे दिए। Most students who hail from far-flung villages don't go back to celebrate all festivals. For them, Super 30 is not just a coaching center, but their home too. But at the back of their mind, there's one motto that they all remember and try to live up to. बच्चों को हमेशा कहता हूँ, बच्चों मन में विश्वास रखो और हमेशा सोचो कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफानों कश्ती निकल सकती है। कभी निराश न हो, मायूस न हो, मेहनत कर, तुम्हारी भी तकदीर जरूर बदल सकती है। From the interiors of Munger district in Bihar, we track the story of the courageous Jaya Devi, who battled a troubled past to bring a paradigm shift in her Naxal-infested village. Watch her inspiring story after the break. Situated about 180 kilometers away from Patna is this picturesque district of Munger. It is known as the green belt of the city. But not so long ago, this region was notorious for Naxal activities. Bringing out a change in this poverty-struck district is Jaya Devi. This green crusader fought threats and danger to help her community. जब 2008 से नक्सली का रूप ले लिए हमारे यहाँ, तो क्या हुआ कि शुरू तो मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उसके साथ 2-4 गो सहयोगी थे, उसको मार दिए। फिर 2009 में भी अटैक हुआ, फिर 2010 में भी हुआ, 2011 में भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मतलब ज़्यादा अथी हुआ कि जिसमें कि 6 लोग के मार भी दिए, 11 लोग के हमारे यहाँ के अगवा करके वो लोग लेके गए। तो जब 11 लोग के ले गए तो कुछ तो हम लोग पूरे ग्रामीण के सहयोग से कुछ प्रशासन पर हम लोग ज़्यादा दबाव बनाए, जो कि 11 बच्चे हमारे यहाँ आ गए हैं। But behind her crusade lies a troubled past. Like most children, little Jaya too loved to play and study. But by the time she turned 12, she was forcefully married to a man double her age. हमें खेलना ज़्यादा पसंद होता था 12 साल में, मतलब पढ़ना थोड़ा पसंद होता था, लेकिन फिर भी हमारे माँ ने शादी कर दी। जब शादी कर दिए ससुराल गए तो ससुराल में भी पति तो हम कहीं 12 साल के, वो कहीं 26 साल के, ऐसा पति हमें मिला। और वो भी मजदूर करने वाला। मजदूरी क्या है कि दिन भर मजदूरी किए, रात के फिर आके मार देंगा, झगड़ा लड़ा। हमें ये पता नहीं था कि क्यों ये मारते हैं, क्यों अथी करते हैं। 17-18 साल में 3 बच्चे भी हो गए हमारे पास। जब 3 बच्चे हो गए तो फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हम इसी जगह हम अपना ज़िंदगी को क्यों ख़त्म कर दें। और यदि हम अपने ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं तो फिर आने वाले समय को सारे लोग को ऐसा ही होते रहेंगे। Undaunted by her circumstances, Jaya Devi was determined to transform not just her own life, but also other women in her village.
She mobilized the women folk and started setting up self-help groups to circumvent money lenders, and so taking the first baby steps towards financial independence. ये काम हम 97 में शुरू किए। हमारे गांव की समस्या क्या थी कि यहाँ की महिलाओं के खास करके यदि कोई भी ज़रूरत पड़ने पर किसी महाजन के यहाँ ये लोग जाके कर्ज लेते थे। अब कर्ज लेने के बाद यदि ये 100 रुपया लिए तो सूद मूड़ जोड़ के वो लोग 20,000 रुपया बनाते थे। 20,000 रुपया में बंधुआ मजदूर के जैसे ज़िंदगी भर ये लोग को खटवाते रहते थे। हम लोग कब तक इस तरीक़ा से जूझते रहेंगे? हम लोग पहले समूह बना लें। तो शुरुआत हमें 31 गांव लगा के समूह बनाए थे। हम लोग 5 रुपया के हफ्ता 20 रुपया का महीना बचत करना शुरू किए। जब बचत करना शुरू किए तो सबसे पहले हम महाजनी प्रधानी उसके पास हम लोग हाथ पसारने के लिए नहीं जाएंगे। महिला खुद से जब 5 रुपया का हफ्ता 20 रुपया का महीना बचत करना शुरू किए तो पहला यदि कोई भी ज़रूरत पर वो अपने समूह से लेना शुरू किए। For a very long time, Sajni Devi was just managing her household, struggling to make ends meet. But her life took a turn for the better. पहले हमरा जानकारी नहीं है, नहीं तो आर्थिक स्थिति हमारा अच्छा है, नहीं तो खाना पीना के हमारा पास व्यवस्था है, नहीं रहना सहना के कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे लाचार हमारा पूरे गांव के आदमी है। लेकिन अभी समाज में समूह से जुटला के बाद में समाज में भी परिवर्तन अले और परिवार में भी। पहले कोई पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिले, लेकिन अब तो कुल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवे लगले। After gaining the confidence of women folk, Jaya met a social activist, Kishore Jaiswal, to learn about rainwater harvesting and watershed management practices. रोजगार के प्रति और जीवन यापन के साधन बढ़ाने के प्रति जो लालसा थी वो काफ़ी आगे थी और महती थी। इसलिए करके इन्होंने फिर हमसे संपर्क में आई और उसी दौरान नाबार्ड के द्वारा वेस्टलैंड डेवलपमेंट का कार्यक्रम था जिसके तहत वाटरशेड डेवलपमेंट मॉडल पे वेस्टलैंड डेवलपमेंट करना था। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस करेली के करीम आहार में इन्होंने श्रमदान का कार्यक्रम पूरे महिलाओं को, पूरे ग्रामीणों को एकत्रित कर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वाटरशेड के प्रति मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था और पूरे गांव वालों ने इनकी ये भागीदारी दी थी जो कालांतर में आकर करेली वाटरशेड और ऐसे 5 और वाटरशेड इस पूरे धरारा कोल क्षेत्र में आए। क्या हुआ कि हम लोग गांव स्तर पर समूह बनाए हुए, पंचायत स्तर पर फेडरेशन के माध्यम से पामारोजा की खेती की। उसमें लागत लगाए 2,40,000 रुपया। जब 2,40,000 रुपया लगाए तो उसमें हम फेल हो गए, पूरे पैसा खत्म हो गया। तब फिर हम सब आपस में पूरे किसान बैठ के ये मतलब सोचना शुरू किए कि भाई हम लोग फेल कैसे हुए। तो पता चला कि पानी की वजह से उसमें पानी नहीं मिला, इस वजह से हम लोग फेल हो गए। तो फिर पानी के लिए क्या करना चाहिए, तो उस टाइम हम किशोर दास से जाके संपर्क किए। हम लोग मतलब कि उसका रीज लाइन चुने। वाटर सेट के एरिया क्या होता है कि 10 नाला 20 नाला के पानी, छोटे छोटे नाला के पानी बहते हुए एक नाला से हो वो वाटर सेट एरिया होता है। फिर वाटर सेट एरिया का हम लोग चुने। उस टाइम हम लोग 93 हेक्टेयर जमीन लिए। Along with her fellow villagers, Jaya then started constructing watershed quarters in her village. This initiative changed the face of the village by improving irrigation practices. पहाड़ के बीच में आप देखते होंगे कि हम लोग गैबियन के जैसे छोटा छोटा पत्थर के अवरोध बांध दिए ताकि पानी फोकसिंग से ना आवे, नीचे धीरे धीरे हमारे यहाँ पानी आवे। जब पानी आते हैं नीचे तो फिर हम लोग बलक से क्या किए हैं, मेड़ दे दिए हैं पूरा एक अड्डा के जैसे बांध। जब वो हम बांध दिए हैं तो वो बांध में क्या है, एक तरफ ही बांध दिए, कम लागत भी लगा और हमारा पानी यानी पहाड़ के जो जितना पानी है नीचे आ रहे हैं वो ये जगह हम लोग रोक लिए। जब ये जगह हम पानी को रोक लिए तो इससे क्या हुआ कि नीचे पोषण हम लोग का पानी बरकरार रह रहा है और नीचे सिंचाई भी हम लोग का मिल रहा है, फसल भी हम लोग का हरा भरा रहता है। With abundant water in the village,
हम आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी और हम चाहते हैं, जो कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे विचार। यदि आपके यहाँ जल है तो फिर अन्न है, अन्न है तो हम सब हैं। और जब अच्छे विचार समाज में होता है तो समाज और आगे बढ़ता है। इसलिए हम लोग को तीनों चीज को और आगे लेके ही चलना है। बहिन सब मिल के द्वार द्वार तक जैबै, बनैबै हम सब मिल के एक मजबूत संगठन, बनैबै हम सब मिल के एक मजबूत संगठन।